Hello students, how are you all? Welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. So students, we have an app by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store for Android phones. Once you have downloaded and logged in with your Gmail ID, you will be transferred to your home page where you can see all the courses that are offered by us. Once you have purchased the course, you can see your courses in the My Course section. But why our courses are so better? Why we think we provide you one of the best content? Because we provide you content on daily basis. In the daily basis, we provide you current affairs with 20 questions quiz as well as the PDF of the current affairs of daily. Then similarly for weekly, on weekly basis we provide you current affairs PDF as well as a 50 questions quiz that will help you to revise all the content that you have learned. Then on monthly basis also we provide you top 100 current affair questions PDF that will be the compiled PDF of the 100 questions of that particular month that will be very helpful for you. And not just this friends, we provide you in English as well as in Hindi too. So both English and Hindi students can enjoy our courses. Apart from this friends, we also provide you banking related question answers, the banking related MCQ questions, the quizzes that will help you prepare for the bank exams. Not just that friends, we provide you a new way of learning, that is your infotainment infographics. That is a different and interesting way of learning. Apart from this, we cover 20 topic wise current affairs. These topics are important such as apps, portals, important days, books and authors days, national affairs, international affairs, sports, defense, all these topics, these are highly important and questions from these particular topics are asked. Also we cover state-wise current affairs also that will help you to prepare for your state exams. Also friends, as I told you, if you use the code Vikas10, you will be given extra 10% discount on the purchase you make. If you have any problem regarding login and your application, then you can contact us on support@affairscloud.com. This is our email ID and you can contact us on our mobile phone, that is 9677333886. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 22 दिसंबर के। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ रिवीजन करंट अफेयर्स देखेंगे एज पर द डेली जो हम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है आपका स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज। ये स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज अभी किन्होंने बनाने की बात की गई? ये यूपी गवर्नमेंट ने अभी ऑस्टिन यूनिवर्सिटी जो कि यूएसए में, इनके साथ टाइप करा ताकि यूपी में भी एक स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज को डेवलप किया जा सके, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। अगर आपको याद हो, यूपी में ही आपका जेवर एयरपोर्ट है और यूपी में ही बोला गया कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में एक पर्टिकुलर स्पोर्ट को प्रमोट करेंगे। जैसे मान लो कोई एक डिस्ट्रिक्ट है इलाहाबाद है, तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर आपका स्पोर्ट प्रमोट किया जाएगा ताकि लोग वहाँ पर खेल सकें, ठीक है, और उसी को आगे बढ़ाया जाएगा। और यहीं पे यूपी ने ही बात की थी कि हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को अचीव करने की इन्होंने बात की। नेक्स्ट आ जाता है गुड गवर्नेंस वीक। 19 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर के बीच में आपका गुड गवर्नेंस वीक ऑब्जर्व किया जाता है और ये सेकेंड एडिशन था आपका गुड गवर्नेंस वीक का, जो हमने ऑब्जर्व किया 19 से 25 दिसंबर के बीच में। फिर इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे, 20 दिसंबर को ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट दिनेश कुमार शुक्ला जी, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। इनको नया AERB एटॉमिक एनर्जी रिसर्च बोर्ड के चेयरपर्सन बनाया गया है। किनको? दिनेश कुमार शुक्ला जी को। फिर आ जाती है 48th मीटिंग ऑफ द GST काउंसिल, किनके द्वारा चेयर की गई थी? यह है निर्मला सीतारमन जी, ठीक है। इसी के साथ साथ याद रखेंगे ये वर्चुअल मोड में हुई थी ये मीटिंग और आपकी न्यू दिल्ली में हुई थी। मूविंग ऑन, फिर आ जाता है इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे। कब ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे? ये आपका 18 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे को। फिर हम बात करते हैं स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, जो कि इंडियन नेवी में अभी कमीशन किया गया, उसका नाम है INS मोर्मुगांव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर हम बात करते हैं मिसेस वर्ल्ड 2022 की। अभी रिसेंटली 2022 में किनको मिसेस वर्ल्ड 2022 के टाइटल से क्राउन किया गया? वो है इंडिया की सरगम कौशाल, ठीक है। मिसेस वर्ल्ड 2022 लास्ट टाइम 2001 में इंडिया की किसी महिला ने ये मिसेस वर्ल्ड 2000 टाइटल जीता था और अब 2022 में 21 साल बाद वापस से सरगम कौशल ने ये टाइटल जीत लिया है। ये 32 साल की हैं, ये टीचर हैं, मुंबई महाराष्ट्र से
बिलोंग करती हैं, वहाँ रहती हैं। इनका जन्म हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अभी एक फुटबॉल स्टेडियम को इनॉग्रेट किया गया है। कहाँ पर? मेघालय में। मेघालय के चीफ मिनिस्टर कॉर्नाड सगमा जी ने एक फुटबॉल स्टेडियम को इनॉग्रेट किया मेघालय में। फिर हम बात करते हैं फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी। ये फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी एक स्कीम लॉन्च की गई थी ताकि जो रीडिंग की हैबिट है उसको प्रमोट किया जा सके। तो अभी रिसेंटली अनबिल मगेश जो कि स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के, उनके द्वारा ये फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी स्कीम को लॉन्च करा गया। तमिलनाडु में ये स्कीम लॉन्च की गई थी। तमिलनाडु की ही बात करें, यहीं पर आपका पहला एम्बुलेंस फॉर स्ट्रीट एनिमल्स भी लॉन्च किया गया था। यहीं पे आपका 44 एडिशन ऑफ फाइट चेस ओलंपियाड भी हुआ था। और यहीं पर आपका ध्यान दें तो एक ब्रेकफास्ट स्कीम भी लॉन्च की गई थी फॉर द प्री प्राइमरी स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स की उनको खाना दिया जा सके इन द गवर्नमेंट स्कूल। और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर और हैं MK स्टालिन। ठीक, तो ये तो हो गए फ्रेंड्स रिवीजन के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं जो आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहेंगे। सबसे हम पहले बात करते हैं सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स की। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में टॉप किसने किया? वर्ल्ड की बात करूं तो टॉप किया डेनमार्क ने। वर्ल्ड की बात करूं तो टॉप किया डेनमार्क में। और इंडिया की क्या रैंक रही? 110 रैंक रही। फिर अगर पूछा जाए कि सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 2022 में इंडिया से किसने टॉप किया, तो वो रहेगा पुडुचेरी। पुडुचेरी जो कि यूनियन टेरिटरी है, इन्होंने टॉप किया। फिर याद रखेंगे इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस रिलीज द एनुअल 2022 सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स जो कि पब्लिश की गई थी सोशल प्रोग्रेस इंपेरेटिव के द्वारा। इंडिया की रैंक रही 110 इन टायर 4 कंट्रीज और डेनमार्क की रैंक रही फर्स्ट इन टायर 1 कंट्रीज जो कि किनको कहा जाता है? हाई इनकम कंट्रीज को बोला जाता है। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। अगर मैं डेनमार्क की बात करूं तो कैपिटल कौन सी रहेगी? ऑस्लो। चलिए मूविंग ऑन, नेक्स्ट पे आते हैं। हमें पता है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती है ना, यूनेस्को के द्वारा दी जाती हैं। ठीक है, तो अभी रिसेंटली इंडिया की 3 नई साइट्स को एक टेंटेटिव या फिर प्रोविजनल लिस्ट ऑफ यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया है। 3 न्यू कल्चरल साइट्स कौन कौन सी हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। वडनागर टाउन, ये वडनागर टाउन कहाँ पर है आपका? ये एक मल्टी लेयर्ड हिस्टोरिक टाउन है गुजरात में, जो कि बर्थ प्लेस भी रहेगी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। सन टेम्पल जो कि मोधरा गुजरात में है, उसको ऐड किया गया। और रॉक कट स्कल्पचर्स एंड रिलीफ्स ऑफ द उनकोटी, इसको भी जो त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ पे इनको ऐड करा गया। इन तीनों को ऐड किया गया। ठीक है, इन तीनों को ऐड के बाद अब इंडिया की जो करंटली है 52 साइट्स ऑन द यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट। ठीक है, 2022 में अलोन 6 आपकी साइट्स ऐड की गई हैं टेंटेटिव लिस्ट में। एंड देयर आर 40 साइट्स इन इंडिया जो कि डेजिग्नेटेड है एज द यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और आपकी टेंटेटिव लिस्ट में कितनी है? 52। यूनेस्को की बात करें तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टर जनरल कौन रहेंगे यहाँ पे? ऑड्रे ऑजले। कब इस्टेब्लिश की गई थी ये? 1945 में। और इट केम इनटू फोर्स इन 1946। और हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा आपका यूनेस्को का? ये है पेरिस, फ्रांस में। पेरिस की मैं बात करूं तो पेरिस में याद होना चाहिए यहाँ पे नेशनल ओलंपिक गेम्स होंगे, नेशनल नहीं ओलंपिक गेम्स होंगे 2024 में। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं आयुर स्वास्थ्य योजना। ये अभी एक स्कीम लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई। द स्टेटस ऑफ सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस स्कीम आयुर स्वास्थ्य योजना। ये आपकी एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, यहाँ पे ड्रग डेवलपमेंट की बात की जाएगी, रिसर्च पे बात की जाएगी, क्लिनिकल रिसर्च पे बात की जाएगी, ताकि जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ना उनको बढ़ावा दिया जा सके, उनको इम्प्रूव किया जा सके। इसके अंडर क्या होगा, जो वहाँ पे फैसिलिटीज़ है, मान लो कोई भी अगर आयुर्वेदा से रिलेटेड जैसे योगा, न्यूरोपैथी, यूनानी सिद्ध, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, कोई भी मेडिसिन होती हैं, वहाँ पे उनको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उनमें रिसर्च करने के लिए, उस पर खोजबीन करने के लिए ये लॉन्च की गई थी। ठीक है, इसी के अंडर याद रखेंगे 10 करोड़ रुपए का एक फाइनेंशियल एड प्रोवाइड किया जाएगा 3 साल के लिए, ताकि उस पर रिसर्च की जा सके किसी भी इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन को। और जो प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए जाएंगे उन्हीं को फंड किया जाएगा बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द प्रपोजल रिसीव्ड फ्रॉम दैम। ठीक है, मतलब जो प्रोजेक्ट्स रिसीव किए गए फिर उन पर देखा जाएगा कि कौन सा ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, एंड उसके बेसिस पे आगे फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट, मार्क करेंगे इसको। फिर हम बात करते हैं इंडिया का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड। इंडिया का
पहला ग्रीन स्टील ब्रांड अभी लॉन्च किया गया ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टील रहेंगे। और इस ब्रांड का नाम क्या है? कल्याणी फेरेस्टा। कहाँ? कल्याणी फेरेस्टा, न्यू दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया था। और जो ये कल्याणी है ना, ये क्या है? कल्याणी ग्रुप हमारा, दिस वाज द मैन्युफैक्चर्ड बाय अ पुणे बेस्ड स्टील कंपनी कल्याणी ग्रुप, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को यूज़ कर रही है, जिससे जो ये रिन्यूएबल एनर्जी को जो यूज़ कर रही है ना, इससे क्या हो रहा है, जो कार्बन फुटप्रिंट है ना वो जीरो है। और इसी की वजह से हम इसको ग्रीन स्टील ब्रांड बोल रहे हैं, पहला ग्रीन स्टील ब्रांड। ग्रीन का मतलब कोई भी अमाउंट ऑफ कार्बन एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं हो रहा है, जिससे ये हमारा एटमॉस्फेयर साफ रहेगा, इसीलिए इसको ग्रीन स्टील बोला गया। तो इंडिया का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड क्या है? कल्याणी फेरेस्टा। ठीक है, फिर यहीं पे अगर मैं बात करूं इंडिया की, इंडिया का एम टारगेट ईयर क्या है टू बिकम कार्बन न्यूट्रल? वो है 2070। यहीं पे अगर केरला की बात की जाए, केरला चाहता है कि हम 100% रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट हो जाएं बाय ईयर 2040, और इन्होंने कार्बन न्यूट्रल बनने की बात की 2050 तक। नेक्स्ट, IICA, इनके द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया टू क्रिएट इम्पैक्ट लीडर्स इन ESG, इकोनॉमिक सोशल गवर्नेंस। तो IICA क्या है? आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इन्होंने अभी एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जहाँ पे ये इम्पैक्ट लीडर्स को डेवलप करेंगे, मतलब उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कैसे डील करना है सिचुएशंस में ऑफ द एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस रिलेटेड एरियाज में। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी याद रखेंगे। इसका इंपॉर्टेंट है IICA, जो कि है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा ये इम्पैक्ट लीडर्स बनाने की बात की गई। फिर आ जाते हैं UI ग्रीन मैट्रिक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 की। इसी को हम बोल सकते हैं मोस्ट सस्टेनेबल यूनिवर्सिटी इंडिया में कौन सी रहेगी? वो है MAHE, माही। इसी को हम क्या बोलते हैं? मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, जो कि मणिपाल कर्नाटका में है। इसकी अगर मैं बात करूं, इंडिया में इन्होंने टॉप किया है एज इंडियाज मोस्ट सस्टेनेबल यूनिवर्सिटी। और यहीं पे अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं तो इसकी रैंक रहेगी 121वीं। ठीक है, इसी की जगह अगर मैं बात करूं सेकंड पोजीशन पे कौन सी आ जाती है? आपकी SRM यूनिवर्सिटी सेकंड पोजीशन पे आ जाती है यहाँ पर। ठीक, सेकंड पोजीशन पे मैंगलोर यूनिवर्सिटी इंडिया में, और थर्ड पोजीशन पे SRM यूनिवर्सिटी। अगर मैं ग्लोबल लेवल पे बात करूं, वर्ल्ड लेवल पे बात करूं, टॉप किसने किया? वो है वेंजियन यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च ऑफ नीदरलैंड के द्वारा ये टॉप किया गया, फॉलोड बाय UK की नॉटिंगहैम ट्रेंट यूनिवर्सिटी सेकंड पोजीशन पे रही। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है RBL बैंक एज बिजनेस नेक्स्ट। RBL बैंक और बिजनेस नेक्स्ट, इन दोनों ने अभी IBS इंटेलिजेंस ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन अवार्ड 2022 को जीत लिया है फॉर द मोस्ट इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट्स एंड बेस्ट कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन के लिए। आई रिपीट, फिर से बता रहा हूँ, RBL बैंक एंड बिजनेस नेक्स्ट, इन दोनों ने अभी IBS इंटेलिजेंस ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन अवार्ड 2022 को जीत लिया फॉर द मोस्ट इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट्स एंड बेस्ट कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन के लिए। IBSI, जो कि है IBS इंटेलिजेंस ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन अवार्ड, ये आइडेंटिफाई करता है और ऑनर करता है टेक्नोलॉजी कंपनीज को एंड बैंक्स को फॉर देयर आउटस्टैंडिंग वर्क इन इम्प्लीमेंटिंग एंड इनोवेटिंग फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी यूजिंग एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। फिर आ जाते हैं E2S पावर। इन्होंने अभी एक एग्रीमेंट साइन किया IPCL के साथ, ताकि 250 किलोवाट पर आवर थर्मल एनर्जी स्टोरेज यूनिट को डेवलप किया जा सके इंडिया में। E2S पावर ये स्विट्जरलैंड की कंपनी है और IPCL ये इंडिया की कंपनी है। इन दोनों के बीच में क्या एग्रीमेंट साइन हुआ? और ये जो स्विट्जरलैंड की E2S पावर कंपनी है ना, ये एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस कंपनी है। ठीक है, और IPCL क्या है? इंडिया पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये पावर लीडिंग यूटिलिटीज़ इन इंडिया ये कंपनी है, पावर जनरेट करती है। तो इन दोनों के द्वारा भी एक एग्रीमेंट साइन हुआ कि हम इंडिया में ही एक स्टोरेज यूनिट डेवलप करेंगे ताकि हम जहाँ पे हम थर्मल एनर्जी को स्टोर कर सकें। और ठीक है, और ये 250 किलोवाट पर आवर का स्टोरेज यूनिट रहेगा, जो कि इंडिया में डेवलप करने की बात की गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्बन कंपनी। हम जानते हैं अर्बन कंपनी क्या है, जो कि लोगों को होम सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे मान लो आपको गाड़ी धुलवानी है, अपना घर धुलवाना है, घर की सफाई करवानी है, ये आपके घर पे आके कर जाएंगे लोग। ठीक है, तो अर्बन कंपनी ने अभी NSDC, जो कि है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, तो
अभी अर्बन कंपनी ने एनएसडीसी के साथ अभी टाई अप किया ताकि लोगों को डिजिटल सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जा सके टू थाउजेंड्स ऑफ न्यू एम्प्लॉयज। आई रिपीट, अर्बन कंपनी ने एग्रीमेंट साइन किया नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ ताकि ट्रेनिंग एंड डिजिटल सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जा सके टू थाउजेंड्स ऑफ न्यू एम्प्लॉयज। ठीक है, इस प्रोग्राम के अंडर न्यू एम्प्लॉयज विल रिसीव स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग फ्रॉम अर्बन कंपनी इन द कैटेगरी सच एज सलोन, स्पा, मसाज, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, एप्लीशियन रिपेयर, क्लीनिंग एंड पेस्ट कंट्रोल। इन सभी फील्ड में ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर उसके बाद यही इनको एम्प्लॉय भी कर लेंगे ताकि बिकॉज इनका काम यही है कि घर घर जाके लोगों को अलग अलग सर्विस प्रोवाइड करना। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 की। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर की स्मार्ट सिटीज मिशन ने अभी ये प्लेटिनम आइकन अवार्ड को जीता ड्यूरिंग द डिजिटल इंडिया अवार्ड्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी ये न्यूज़, आइए इसके बारे में डिस्कस करें। स्मार्ट सिटीज़ मिशन, ये मिशन का नाम रहेगा किस मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। इन्होंने क्या जीता? प्लेटिनम आइकन अवार्ड को जीता है। किसमें? इन द डिजिटल इंडिया अवार्ड्स कैटेगरी में, या फिर इन ड्यूरिंग दिस डिजिटल इंडिया अवार्ड्स इन्होंने प्लेटिनम आइकन अवार्ड को जीता। किसने? स्मार्ट सिटीज़ मिशन ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स के द्वारा लॉन्च की गई थी। और किस लिए इन्होंने ये डिजिटल इंडिया अवार्ड्स के दौरान प्लेटिनम आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? फॉर डाटा शेयरिंग एंड यूज़ ऑफ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैटेगरी फॉर देयर इनिशिएटिव। और इनका इनिशिएटिव क्या है? डाटा स्मार्ट सिटीज़ एम्पावरिंग सिटीज़ थ्रू डाटा। ठीक है, इस मिशन के लिए, इस इनिशिएटिव के लिए स्मार्ट सिटीज़ मिशन को, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया था, प्लेटिनम आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। और कब सम्मानित किया गया, कहाँ सम्मानित किया गया? ड्यूरिंग द डिजिटल इंडिया अवार्ड्स के दौरान इनको सम्मानित करा गया था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। और ये डिजिटल इंडिया अवार्ड्स की बात करें तो ये 7th एडिशन रहेगा डिजिटल इंडिया अवार्ड्स का, जो हमने 2022 में ऑब्जर्व करा। ठीक है, अगर डिजिटल इंडिया अवार्ड्स की बात करें, दीज आर इंस्टीट्यूटेड अंडर द एजिस ऑफ नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया टू ऑनर एंड एनकरेज इनोवेटिव डिजिटल सॉल्यूशंस बाय द गवर्नमेंट एंटिटीज एट ऑल लेवल, चाहे वो स्टेट पे हो, सेंटर पे हो या लोकल बॉडीज हो, टू फुलफिल द डिजिटल इंडिया वर्जन। ठीक है, और जो ये नेशनल पोर्टल है, इसको डिज़ाइन किया गया और डेवलप किया गया है एनआईसी के द्वारा, जो है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। और ये नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंडर आता है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं। अभी रिसेंटली एक ब्रिटिश मैगजीन के द्वारा लिस्ट ऑफ 50 ग्रेट एक्टर्स रिलीज की गई, और इस लिस्ट ऑफ 50 ग्रेट एक्टर्स में से जो ओनली इंडियन थे वो थे शाहरुख खान। आई रिपीट, द ओनली इंडियन फ्रॉम द लिस्ट ऑफ 50 ग्रेट एक्टर्स वो रहेंगे शाहरुख खान, जो कि ब्रिटिश मैगजीन के द्वारा लॉन्च की गई थी। ठीक है, ब्रिटिशर्स के द्वारा या ब्रिटिश मैगजीन के द्वारा ये 50 ग्रेट एक्टर्स ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट लाई गई, जिसमें से ओनली इंडियन एक्टर्स शाहरुख खान थे, जो 57 ईयर्स ऑफ एज है। इन्होंने अपना डेब्यू किया था 1992 में विद द मूवी दीवाना। उसके बाद इन्होंने कई सारी मूवीज़ लॉन्च की, जैसे देवदास, माय नेम इज़ खान, कुछ कुछ होता है, जब तक है जान, डॉन, स्वदेश। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे। अभी रिसेंटली पूमा के द्वारा क्या हुआ था, इन्होंने एक अपनी पिक्चर इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दी अनुष्का शर्मा की, जहाँ पे उन्होंने जो क्लोथिंग पहनी थी वो थी प्यूमा की। ठीक, लेकिन फिर अनुष्का शर्मा ने वापस रिवर्ट किया कि प्यूमा को टैग करके बोला या फिर कन्फ्रंट किया कि आई एम नॉट योर ब्रांड एम्बेसडर, स्टिल वाई यू आर प्रमोटिंग मी। तो मतलब आप क्यों मेरी कंसेंट के बिना मेरी पिक्चर्स को यूज़ कर रहे हो, एंड बिकॉज आई एम नॉट योर ब्रांड एम्बेसडर। तो उसके बाद ये न्यूज़ आई है कि प्यूमा इंडिया ने अभी अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर इम्पोर्ट कर लिया है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। प्यूमा जो ये आपका एक स्पोर्ट्स ब्रांड है इंडिया में, ठीक है, और इन्होंने अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। इसी के साथ साथ याद रखेंगे, अगर आपको पता हो, जैसे कैटरीना कैफ जो पहले आपकी माज़ा आती थी, उनको ये ब्रांडिंग करती थी, स्लाइस की ब्रांडिंग करती थी, नॉट माज़ा, स्लाइस की ये ब्रांडिंग करती थी। तो रिसेंटली अभी पेप्सिको की जो एक्वाफिन ब्रांड है ना, उन्होंने भी कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट कर लिया है। ठीक है, पेप्सिको जो इंडिया का वाटर ब्रांड नहीं होता एक्वाफिन, उनका जो ब्रांड एम्बेसडर किनको बना दिया है? कैटरीना कैफ को, और वो स्लाइस की तो थी। नेक्स्ट, इंडियन नेवी गेट्स द 5th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन वजीर।
वजीर नाम की 5th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन अभी किन को डिलीवर की गई है? इंडियन नेवी को। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ये P-75 मतलब प्रोजेक्ट 75 के अंडर कलवारी क्लास सबमरीन्स के ये लॉन्च की गई थी और इसको डिलीवर किया गया इंडियन नेवी को। और ये किसके द्वारा डिलीवर की गई थी? मैन्युफैक्चर और डेवलप किसके द्वारा की गई? मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा, जो कि कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है, इसको कमीशन किया जाएगा इंडियन नेवी में इन जनवरी 2023 और ये है आपकी INS वगीर। ऑलराइट, अगर मैं इंडियन नेवी की बात करूं तो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन रहेंगे? एडमिरल राधाकृष्ण हरिकुमार, जिनको हम एडमिरल R हरिकुमार के नाम से जानते हैं। इंडियन नेवी को फाउंड कब किया गया था? 1950 में इसको फाउंड किया गया और हेडक्वार्टर पूछा जाए तो न्यू दिल्ली, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, इन स्पेस ने अभी एक MOU साइन किया QNew लैब्स के साथ ताकि सैटेलाइट QKD प्रोडक्ट को डेवलप किया जा सके, ताकि जो कम्युनिकेशन है ना बीच में वो ज़्यादा इजी हो सके। इसीलिए अभी रिसेंटली इंडियन इन स्पेस, जो कि है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इनके द्वारा भी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है बेंगलुरु बेस्ड टेक स्टार्टअप QNU लैब्स के द्वारा, ताकि और ये MOU जो क्या होगा, ताकि सैटेलाइट क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट्स को डेवलप किया जा सके। इससे क्या होगा, जो आपका कम्युनिकेशन है ना वो बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा, क्वांटम बेस्ड सिक्योर कम्युनिकेशन होगा, जिससे आप इनफाइनाइट डिस्टेंस पे भी इजीली कम्युनिकेशन कर पाएंगे विद फुल सिक्योरिटी। अगर मैं QKD की बात करूं, ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि यूज़ करता है क्वांटम मैकेनिज्म्स को टू एंश्योर सिक्योरिटी टू सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर्ड अमंग डिफरेंट पार्टीज। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट, मार्क करेंगे इसको। फिर अगर मैं QNew लैब्स की बात करूं तो यहाँ पे फाउंडर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? सुनील गुप्ता। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यहाँ पे बेंगलोर, कर्नाटका में। अगर मैं इन स्पेस की बात करूं तो चेयरपर्सन कौन रहेंगे? पवन गोयंका। और यहीं पे हेडक्वार्टर की मैं बात करूं इन स्पेस का, ये रहेगा अहमदाबाद, गुजरात में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इंडियन नेवी ने अभी लॉन्च किया पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप INS अरनाला। आई रिपीट, इंडियन नेवी ने लॉन्च किया पहला 8 इंडिजिनियसली बिल्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। ये ASWSWC ये इंडिया का पहला 8th इंडिजिनियसली बिल्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट रहेगा। ठीक है, इसको कहाँ पे डेवलप किया गया? एट शिप बिल्डिंग फैसिलिटी ऑफ L&T लार्सन एंड टर्बो के द्वारा डेवलप किया गया, जो कि चेन्नई, तमिलनाडु में है। ठीक है, यहाँ पे इसको इंडिजिनियसली बिल्ट किया गया था। ठीक है, लेकिन इसको बनाया किसके द्वारा गया था? GRSE के द्वारा इसको बनाया गया था, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा, जो कि कोलकाता, वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसको लॉन्च किया गया L&T के यहाँ पर एट शिप बिल्डिंग फैसिलिटी, जो कि तमिलनाडु में है L&T की, लेकिन इसको बिल्ट किया गया था GRSE के द्वारा। इसको करेक्ट कर लेंगे, आई रिपीट, इसको लॉन्च किया गया L&T शिप बिल्डिंग फैसिलिटी के यहाँ पे और बिल्ट किया गया था GRSE के द्वारा। यहीं पे अगर GRSE की बात करूँ, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड की चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे? PR हरी। ये कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1976 में। और हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। तो क्या नाम है इसका? पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप का INS अरनाला। फिर हम बात करते हैं, यूरोप का भी एक वेगा सी नाम का रॉकेट था, जिसको लॉन्च के बाद ही उसका जो कम्युनिकेशन है ना वो लॉस्ट हो गया। ठीक है, तो डायरेक्टली याद रखेंगे क्या नाम था उसका? वेगा सी नाम का वो रॉकेट था, जो कि लॉन्च के बाद उसने अपना कम्युनिकेशन लॉस कर दिया और ये यूरोप का था, यूरोप स्पेस एजेंसी का। नेक्स्ट बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ याद रखनी है ना, कि अभी इनके द्वारा एक रिहेबिलिटेशन पॉलिसी लॉन्च की गई है फॉर CISS। CISS क्या है आपका? ये
चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन, ताकि उनकी जो राइट्स हैं, जो उनको सेफ गार्ड किया जा सके, उनका देखभाल की जा सके कि वो सेफ हैं या नहीं। तो ऐसे बच्चों को जो स्ट्रीट्स पे रहते हैं, द चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन, CIS की फुल फॉर्म हो गई पहली चीज़ तो ये जो स्कीम थी CISS की फॉर द चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन, ये एक रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है जो जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा लॉन्च की गई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मनोज सिन्हा। जो कि मनोज सिन्हा कौन है? मनोज सिन्हा यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल हैं ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उन्हीं के द्वारा ये रिहेबिलिटेशन पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन ये लॉन्च की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करेंगे। ठीक, तो दोस्तों ये तो थे हमारे करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। 2022 के सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स की बात करूँ तो नॉर्वे ने टॉप किया और इंडिया से पुडुचेरी ने टॉप किया। इंडिया की रैंक रहेगी 110 इन दिस इंडेक्स और ये टायर 4 सिटीज़ में आ जाता है इंडिया, और नॉर्वे टायर 1 सिटीज़ में आता है, कंट्रीज़ में आता है, और इंडिया 110वीं पोजीशन पे इन टायर 4 कंट्रीज़। फिर टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें तो 3 नई साइट्स को इंडिया की ऐड किया गया है यहाँ पे। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा अभी एक स्कीम लॉन्च की गई, आयुर स्वास्थ्य योजना। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च किया इंडिया का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड जिसका नाम है कल्याणी फेरेस्टा। IICA इनके द्वारा लॉन्च किया गया एक प्रोग्राम टू क्रिएट इम्पैक्ट लीडर्स इन द इकोनॉमिक सोशल गवर्नेंस। UI ग्रीन मैट्रिक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में माही ने टॉप किया, और हम इसको ऐसे कह सकते हैं मणिपाल यूनिवर्सिटी ने, ये इंडिया की मोस्ट सस्टेनेबल यूनिवर्सिटी आ जाती है। ठीक, और ये कौन सी पोजीशन पे? वर्ल्ड वाइड 121st पोजीशन पे। सेबी बोर्ड अप्रूव द फेजिंग आउट ऑफ शेयर्स बायबैक थ्रू स्टॉक एक्सचेंजेस। ट्रांस यूनियन सिबिल एंड OPL लॉन्च्ड FIT रैंकिंग फॉर MSMEs अंडर SIDBI मेंटरशिप। RBL बैंक और बिजनेस नेक्स्ट ने अभी IBSI ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन अवार्ड को जीता 2022 के लिए। E2S पावर ने एक एग्रीमेंट साइन किया IPCL के साथ फॉर 250 किलोवाट पायलट थर्मल एनर्जी स्टोरेज यूनिट के लिए। ये E2S ये क्या, स्विट्जरलैंड की कंपनी, ये इंडिया की कंपनी, और ये क्या स्टोरेज यूनिट प्रोवाइड करती है। तो इन दोनों के बीच में भी 250 किलोवाट की थर्मल एनर्जी के स्टोरेज यूनिट डेवलप करने की बात की गई। कहाँ पर? इंडिया में ही। फिर बात करते हैं अर्बन कंपनी, इन्होंने पार्टनर किया NSDC के साथ, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ, ताकि अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके। फिर डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की स्मार्ट सिटीज़ मिशन ने प्लेटिनम आइकन अवार्ड को जीत लिया ड्यूरिंग डिजिटल इंडिया अवार्ड्स, और ये 7वां एडिशन था डिजिटल इंडिया अवार्ड्स का। शाहरुख खान वो ओनली इंडियन एक्टर बने जिन्होंने फीचर किया ब्रिटिश मैगजीन्स लिस्ट ऑफ 50 ग्रेटेस्ट एक्टर्स में। प्यूमा इंडिया की बात करें, इन्होंने अनुष्का शर्मा को भी अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित कर दिया है। फिर बात करते हैं CCI ने अप्रूव किया WHL ब्रूकफील्ड एंड एसेट CCI ने अप्रूव किया WHL ब्रूकफील्ड एसेट मैनेजमेंट्स माइनॉरिटी स्टेक बाय इन UPL SAS। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन नेवी को अभी 5th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन वजीर से सम्मान इनको प्रोवाइड की गई, इनको कमीशन की गई। फिर इन स्पेस ने अभी एक MOU साइन किया QNew लैब के साथ, ताकि सैटेलाइट QKD प्रोडक्ट्स को डेवलप किया जा सके। इंडियन नेवी ने लॉन्च किया पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप INS अर्नाला। यूरोप की वेगा C रॉकेट ये फेल हो गया लॉन्च के बाद, एंड ये स्पेस में लॉस्ट हो गया। ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, ESA का। देन जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा अभी एक रिहेबिलिटेशन पॉलिसी फॉर CISS को लॉन्च किया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मनोज सिन्हा, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू एंड कश्मीर के। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं होमवर्क सेशन पे। पहला, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द UN बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस COP15? सेकेंड, विच कंट्री इज द FIFA वर्ल्ड कप चैंपियन ऑफ द ईयर 2022? Third, Sela Pass Tunnel, which was seen in news, is located in which state? Fourth, रायथू बंधु, ये एक फ्लैगशिप स्कीम है किस इंडियन स्टेट यूनियन टेरिटरी की? फिफ्थ आ जाता है, एज पर द UN नेचर डील व्हाट % ऑफ द प्लेनेट इज सॉट टू बी प्रोटेक्टेड बाय 2030? तो दोस्तों ये थे आपके कुछ 5 होमवर्क क्वेश्चंस। आई होप आपको असाइनमेंट समझ आ गया है। 1-2 क्वेश्चन इसमें से रिपीटेड है, पर वो रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ऑल्सो फ्रेंड्स, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका क्या व्यूज़ है ऐसे सेशन पे, क्या आप चाहते हैं हम ऐसा सेशन फ्यूचर में लाते रहें, कंटिन्यू रखें, तो कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है।
ऑल्सो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो इस चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऑल्सो हम डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स हिंदी में एंड इंग्लिश में आपको प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ साथ वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड किया जाता है। एज वेल एज फ्रेंड्स, अगर आपको यूट्यूब पे जाके सर्च करना है हमारे बारे में तो डेली करंट अफेयर्स बाय विकास राणा लिख दीजिए, आपको यूट्यूब चैनल पे हमारा सारा कंटेंट मिल जाएगा। आई रिपीट, डेली करंट अफेयर्स बाय विकास राणा लिखिए एंड आपको सारा कंटेंट हमारा जो हम डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं। इवन आपको अगर क्विज अटैम्प्ट करनी है तो आप कैरियर्स क्लाउड एप्लीकेशन पे जाइए एंड गूगल प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कीजिए एंड आपको देखेंगे जो वो हम क्विज़ आपको प्रोवाइड करते हैं ना रिवीजन के लिए हमारे कोर्सेज में, बहुत ही शानदार क्विज़ रहती हैं, बहुत अच्छा रिवीजन होता है उन करंट अफेयर्स से। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.